Namaste, I am Jyoti Bhavkar at Gundegaon, Maharashtra. We will introduce our Sampurna Shetkari, Sendriya Sheti Gat from Ahmednagar. Here is my husband, Hello. Hello, sir. Namaste. Santosh Bhavkar. We are doing a natural and organic farming at our village, Gundegaon. There is we all know about the chemical hazardous effect of chemicals in human being. There are in India, green revolution is occurred in 1960. As yield of product is high, but there is a very hazardous effect on human being as like a cancer, various skin diseases. So we are doing. Give my introduction. I will completed my MSc Organic Chemistry from Pune University. I will also qualify government exam. But when after marriage, my husband support me for my education, and when I will leave my government job for the work with Sampurna Shetkari Sendriya Sheti Gat, which is a group of farmers, around 150 to 200 farmers in our group. So there is a very big work for farmers and also nice work for customer, which is our live in Pune, Mumbai and Bangalore. We are doing organic and natural farming. In natural farming, there is a use of Panchagavya, Panchamrut, Dashaparni ark. So much type many farmers use cow dung, urine, and whatever the waste of farm are used in the organic manure. So there is no need of any chemical. So we all know in India there is a farming is very great. So all over the world, India's farming will be experienced. So I will discuss about the Sampurna Shetkari background. As in Gundegaon, which is located for 30 to 40 kilometers from the Ahmednagar, and it is a last village from Ahmednagar. It is surrounded by a hilly area. We have a 21% forest. So all farming is depend on the rainy water. That is our area is a rain-fed season, so the crops will be cultivated is like moth beans, grains, pulses, red kidney beans, Niger seeds like it's known as a kurasni. So which is have a very less water content. So as semi-arid zone, there is no use of chemicals, and the varieties of products and crops are very natural and great. Next, I will explain about more about Sampurna Shetkari. Right now, my husband, Mr. Santosh Bhavkar, give the information about our products and our vegetables and fruits. Please. Namaste. Hi, I am Santosh Bhavkar. My wife informed to you, and because my English is not fluent, so you are excused to me, and you are permitted to me कि I will speak to Hindi, please. जैसे कि हमारी पत्नी ज्योति जी ने अभी बताया कि हम लोग यहाँ पे गुंडेगांव अहमदनगर महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर फार्म कर रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ में हम लोग जिस टाइप की फार्मिंग कर रहे हैं तो पूरी मतलब पारंपरिक खेती में हम लोग काम करते हैं। जैसे कि पारंपरिक खेती में आपको मालूम होगा कि हमारे हिंदुस्तान में 3 टाइम के ऋतु आते हैं, जैसे कि रेनी सीजन आता है, विंटर सीजन आता है और समरी वाला सीजन आता है। तो उस हिसाब से हम लोग जैसे कि ग्रीष्म आता है, वसंत आता है और शरद ऋतु आता है। तो वो ऋतु के हिसाब से 3 मुख्य प्रकार के क्रॉप्स हम लोग लेते हैं। जैसे कि पहला क्रॉप्स खरीफ हंगाम का आता है और दूसरा आता है जो रबी का आता है।
तो खरीफ हंगाम हमारा स्टार्ट होता है तो वो जैसे कि 7 जून को मानसून आता है, और वो मानसून के हिसाब से हम लोग इधर जो क्रॉप्स लेते हैं तो वो आता है, बाजरा आता है, मूंग आता है, और उसके साथ में ग्राउंडनट आता है, और उसके साथ में आता है मक्का, उसके साथ में आता है प्याज, और फिर बहुत सारे प्रकार के वेजिटेबल्स आते हैं, लाइक ब्रिंगल है, जैसे पालक है, मेथी है, कोरिंडर है, उस टाइप के वेजिटेबल्स भी हम लोग यहाँ पे लेते हैं। और फ्रूट्स में जो आता है तो फ्रूट्स में हम लोग लेते हैं लेमन्स, उसके साथ में ऑरेंजेस, मौसम्बीज, और दालिम, फिर वो पीरू मतलब गोवा, और वो चीकू, इस टाइप के कुछ हम लोग ये लेते हैं, क्रॉप्स लेते हैं। तो पारंपरिक खेती और नेचुरल फार्मिंग और अभी का जो केमिकल्स वाला फार्मिंग बाकी लोग ले रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क आता है? जैसे कि अभी ज्योति जी ने बताया कि केमिकल्स वाला फार्म और उसकी फार्मिंग करने के बाद में उसके प्रोडक्ट जो निकलते हैं, तो प्रोडक्ट से क्या होता है कि इंसानी जीवों पे जिस टाइप का असर पड़ता है, तो वो असर उससे कैंसर जैसी बीमारी होती है, उच्च रक्तदाब जैसी बीमारी होती है, और ब्लड में शुगर ज़्यादा होता है, कम होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो जैसे कि हम लोगों का ये मानना है कि जैसे कि हिंदुस्तान 2 चीज़ों के नाम से हम लोग ज़्यादा करके जय जयकार करते हैं। पहला आता है जय जवान, जो सीमा पे अपना पूरा कर्तव्य निभाते हैं, और दूसरा आता है कि जय किसान। तो किसान का काम है, जैसे कि सीमा पर जवान अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ में कर रहा है, तो किसान का काम है उसका खेती में पूरा काम ईमानदारी के साथ में करना। और उस टाइप का काम करते करते यहाँ से शुद्ध, निर्भेड़ और किसी भी प्रकार की मिलावट के बगैर जो यहाँ पे अनाज उगाया जाए, जो पकाया जाए, वो अनाज कस्टमर जो पुणे में रहता है, मुंबई में रहता है, बेंगलुरु में रहता है, कलकत्ता में रहता है, या पूरी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ शहर में जो लोग बसते हैं, तो उनके लिए पूरा शुद्ध टाइप का अनाज उन लोगों को खिला देना ये किसान का काम है। तो इसके साथ में फिर यहाँ पे जो हम लोग खेती करते हैं, तो वो किस टाइप की खेती करते हैं? तो हम लोग जो करते हैं तो पारंपरिक खेती करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे समझो बाजरा का अगर हम लोगों को ये लेना है और क्रॉप्स लेना है, तो बाजरा का क्रॉप्स लेते टाइम जैसे ज्योति जी ने बताया कि हम लोग पूरा गाय का गोबर होता है, उसके साथ में जो गोमूत्र होता है, उसके साथ में जो डीकम्पोस्ट वाला डेपोज होते हैं, उसके साथ में दशपर्णी आर्क, जो दशपर्णी आर्क इसके लिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि बाकी का केमिकल स्प्रेड करने से जो मतलब क्रॉप्स के जो लीव्स आते हैं, वो लीव्स तो क्रॉप्स का नाक और मुंह रहता है, उससे वो अनाज खींचते हैं। तो फिर उसी के ऊपर अगर स्प्रेड करेंगे तो स्प्रेड करने से क्या होता है ना कि वो पूरा वो क्रॉप्स के जहन में चला जाता है, और रेसिड्यू अगर उसके जहन में चला जाए जो मानवीय जीव के लिए हानिकारक है, तो वही फिर उसका अनाज, उसका दाना बनता है, और वही दाना हम लोग अगर पीसने के लिए लेके जाएंगे तो उसका आटा तैयार होगा, और वो आटा अगर तैयार हो जाएगा तो फिर खाने में वही जाएगा, फिर हमारे शरीर में वही चला जाएगा, मतलब रेसिड्यू पूरा उसमें चला जाएगा। और दूसरा जो आता है तो हम लोग दशपर्णी आर्क बनाते हैं। दशपर्णी आर्क किस चीज़ का बनाते हैं? जो दशपर्णी आर्क होता है वो 10 ऐसी वनस्पति है जो कुदरत ने खुद तैयार की है। यहाँ पे इंसानी जीव ने कहीं उसका रेसिड्यू नहीं किया है। जैसे कि उसमें सीताफल का पत्ता आएगा, नीम का पत्ता आएगा, फिर उसमें आएगा वो मंदार का पत्ता आएगा, फिर उसमें आएगा वो करंज का पत्ता आएगा, 10 टाइप के पत्ते आते हैं। और उसमें आएगा फिर गोमूत्र, फिर उसमें आएगा गोबर, और वो सब एक जगह पे मिला के फिर उसको 15 दिन 20 दिन भिगो के रखने के बाद में उसको वो तैयार किया जाता है। वो स्प्रेड करने से क्या होता है? वो स्प्रेड करने से कि वो जो भी स्प्रेड करेंगे तो वो कुदरत ने कुदरत के लिए जो कुदरती चीज़ बनाई है, मतलब कुदरत को मालूम है कि उसकी रक्षा किस टाइप से करनी चाहिए, तो वो अपनी रक्षा खुद करते हैं। तो इसके लिए अगर इंसान उसको सही से यूज़ करेंगे तो वो बराबर बनता है। फिर दूसरी बात क्या होती है ना, हम लोग बनाते हैं जीवामृत। जीवामृत से क्या होता है कि जो मतलब हमारी भूमि में खुद भूमि के अंदर कुछ ऐसे जीव है कि उनको जीने के लिए अगर सपोर्टिंग कोई भी ये डालेंगे हम लोग, मतलब खाद उसको दे देंगे, तो वो जीव और बढ़ेंगे, जो कि हमारे क्रॉप्स के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस टाइप से हम लोग खेती करते हैं। और फिर हम लोगों ने जैसे मैडम ने इंट्रोडक्शन करते टाइम बताया कि हम लोग 50 फार्मर्स ऑन बोर्ड जिनको लेके हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो सब फार्मर्स को साथ में लेके हम लोग काम करते टाइम उनको
सीजन के बारे में पहले बताते हैं और फिर पंचांग के हिसाब से हम लोग खेती करते हैं। पंचांग हर एक चीज को वो दिखाता है, ग्रह को दिखाता है, नक्षत्र को दिखाता है, फिर तिथि को दिखाता है, किस टाइम पे बीज बोना चाहिए, किस टाइम पे कल्टीवेशन करना चाहिए। तो हर एक चीज का, जैसे कि अभी शुरुआती में अभी कल खत्म हो गया और आज दूसरा नक्षत्र चालू हो गया, कल मृग नक्षत्र खत्म हो गया, आज आद्रा चालू हो जाएगा। तो वो नक्षत्र के हिसाब से अगर मृग नक्षत्र में हम लोग मूंग की अगर बुआई यहाँ पे करेंगे तो उसकी फार्मिंग सबसे बढ़िया आएगी। बाजरा की फार्मिंग करेंगे सबसे बढ़िया आएगी। वो तुअर की करेंगे, अरहर की करेंगे तो सबसे बढ़िया आएंगी, मक्का की करेंगे तो सबसे बढ़िया आएंगी। लेकिन यही सीजन अगर आगे जाता है फिर पीछे जाता है तो वो उसकी बराबर नहीं आएगी। तो उस टाइम पे वो भगवान ने फिर उस टाइम पे वो निसर्ग के हिसाब से, नेचर के हिसाब से वो बराबर आएगा, वो गलत नहीं आएगा। तो अगर थोड़ा आगे पीछे हम लोग ले लेते हैं तो फिर क्या होता है ना कि यहाँ पे खेती बनाते टाइम पारंपरिक खेती करने से हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने इस ढंग की कुछ खेती और उसके तंत्र बनाए हैं कि उसमें दक्षिणायन और उत्तरायण वो दोनों का हिसाब बराबर रखा है। अक्षांश और रेखांश के हिसाब से उन लोगों ने बराबर बताया कि जैसे हम लोगों का महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे यहाँ का आने वाला क्रॉप्स और महाराष्ट्र के अंदर में सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में आने वाला क्रॉप्स ये अलग होगा। ये दो जगह का क्रॉप्स अलग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो गिरने वाली सनलाइट से, मूनलाइट से, और वो हिसाब से दक्षिणायन और उत्तरायण से स्टार्ट होने वाले अक्षांश और रेखांश से जो सनलाइट का आने वाला प्रभाव है, तो वो प्रभाव के हिसाब से क्रॉप सिस्टम यहाँ पे बनाई गई है। तो वो जो हम लोग पारंपरिक खेती है वो हिसाब से हम लोग पारंपरिक खेती से ज़्यादा करके ताल्लुकात रखते हैं और हेल्दी बनाते हैं और हेल्दी खाना खिलाते हैं और हेल्दी कस्टमर लोगों को देते हैं। अब इसके बाद में मैडम आपके साथ में संवाद करेंगे। जी, थैंक यू। Namaste. We will talk about natural farming and organic farming. I will explain about Sampurna Shetkari Sendriya Gad. My husband Santosh Bhapkar give the information about field work. I will explain you about marketing my products. In a meanwhile, I will special thanks to Lakshmi ma'am, who is the editor of Agricultural World in a magazine at Krishi Jagran. So special thanks to her. She will promote village level peoples at a national level. I will show you my some products. These are my packing. My name is Sampurna Shetkari. Here is the all information about Sampurna Shetkari Gad. Which type of products we sell. Here is the date of packing and MRP is here, and here is the name of product. We will packing according to pre-order, as it is maybe 500, 1 kg or 5 kg. As the material from farmer to come at my workshop or at my home, there is a remuneration for farmers home family. We will work in cereals. At started, we will work in a cereals and pulses like moth bean, red kidney beans, flax seeds, name as alsi, khurasni, Niger seeds, or many of right in a nowadays, as there are 2 months back lockdown is there. We will work in a vegetables and fruits also. We will aware about customer to eat seasonable fruits and seasonable vegetables. Right now I will show to some vegetables which is at morning harvested and to delivered to customer in Pune or Mumbai. These are the desi seeds, fenugreek seeds. Is in Marathi it's known as methi. You look about its leaves. Its leaves are very small. So it's an indigenous and deshi variety. Next, there is a shepu. I don't know what is the word for this. Again, it's also indigenous seeds. I will have a coriander. Its scent, I do not show you the scent, but its scent is very gorgeous. I will have a leafy vegetables like palak or some fruit. There is a lady finger and gawar is there.
We are given the farm fresh harvested material to the customer. These are the brinjals which are indigenous. These are tomato, deshi tomatoes, and these are the karela is there. So I will show you all the varieties are indigenous and deshi. It is a preserved by farmer, which is continue when my husband Santosh Bhapkar is aware for the farmers to natural farming. There is a very hard work for us or all family. Then when we will give the fixed amount of product, as the market rate is one product is 30 rupees, we will give the 32 rupees for Sampurna Shetkari included farmer. So farmer will be satisfied as he wants to give the 2 rupees more than market. So he will join to Sampurna Shetkari and he work with Sampurna Shetkari Gun. So I have a 500 home deliveries in Pune, 100 to 200 home deliveries in Mumbai, and retail counters are there. 70 to 80 retail counters in Pune, which is delivered our Sampurna Shetkari material to all customers. Customers have a very apologize us की संपूर्ण शेतकरी गट give farmly harvested at morning products to deliver to at home within a 5 to 6 hours. So the quality of product is very good and very nice, and the taste will be amazing. So I will give the information about my marketing. If any audience which have to listen to us, I have any information about organic and natural farming in his field. So in the session, in the last session timing, I will give you our number. So if you want any queries about natural and organic farming, then marketing, and if you work with us, so I will give our number to you. ठीक है. So farmers have a very happy to work with us. 15 on board, 15 as said by Santosh Bhapkar ki 15 farmers on board, around 150 to 200 people to meet us. So much farmers to come at my home and to look our workshop and our surrounding. I will give the opportunity. If anyone wants to see our Sampurna Shetkari gut working, so please visit us to at my home, where is a work is started and over. In Sampurna Shetkari brand, there is a big opportunity for farmers' sons, as they are very irritated with Facebook, WhatsApp. They are engaged in only mobile phones only. We are giving to so much work about natural farming and in the marketing. I will aware about it. What should be the cost of farmers product in the market. I will show him, and they will give the best opportunity, and they are engaged in farming products. So I have a idea about what should customer should want, the quality of products, the taste of products, and the packing of products. As there is increase of customers awareness, our Sampurna Shetkari brands goes to high level. Then some customers have a issue and about certification. We all also do. Mr. Santosh Bhapkar is a very genius person, as he will give me a very great opportunity from village side. One woman will be work with the Sampurna Shetkari Gut as a natural farming and marketing in Pune and Mumbai. He hats off to you. Hats off to Santosh Bhapkar. They will give me big opportunity. So as a Sampurna Shetkari brand work in Pune and Mumbai, we are big vision. The customers have a farm fresh, organic, natural food. They should provide. So the many of people will contact sir. My customer care number of Sampurna Shetkari is 9423004039. And any information about Sampurna Shetkari brand, sorry, I will cut off my subject.
I will give the information about certification. So at Ahmednagar Krishi department, they will help us in very such a programs. They will support us for many much more time. And PGS certification is in organic farming is very essential. So we will have in a third stage of PGS India. First and second year will be completed in a last year, and this year will be third year of Sampurna Shetkari Gat. And also when we will work in a national or international market, there is another certification like NPOP. So much is there. As the certification is made, in certification there is a soil sampling is there. Each and every farmers collected soil sample from his farm, and collected in a agricultural department, and soil health card is there. As soil health card is okay, there is a nutrient contents, sulfide, nitrites, these contents are okay, then soil health card is completed for this farmer. So certification part is very essential when you are doing marketing in national, international or Pune and Mumbai market. Some people they don't have only certified, they have authentic and natural products they want. So these all are about Sampurna Shetkari Gat. Sampurna Shetkari Gat gives the very strength for the farmers, and at so many promoted tribal area are there. Gundegaon is a very tribal zone, as it is located in Ahmednagar, but it is surrounded by a hilly area. On a three sides there is a hilly surface, so there is no any type of pollution. Canal is not there. Only farming is depend on a rainwater only. So the farming is very best. So I will explain about all information about Sampurna Shetkari. We will give some products. I will show again my Sampurna Shetkari brand is there. These are the sticker. The sticker उल्टा होता है. These are the sticker for Sampurna Shetkari. Next, Santosh Bhavkar will be continue with us. Thank you. थैंक यू. मैं सबसे पहले कृषि जागरण का तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि फार्मर्स द ब्रांड ये प्रोग्राम उन्होंने चालू कर दिया, और इसके तहत हम लोगों को यहाँ एक चांस दे दिया गया कि फार्मर्स है जो खेती में काम करते हैं, वो अपने दिल की, अपने मार्केटिंग की, फिर हम उन लोगों ने जो ब्रांड तैयार किया है, जो मार्केटिंग तैयार की है, वो कहाँ पे भेजे और किसको दे दे, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं होती है. मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि व्यासपीठ मिलना. तो ये कृषि जागरण के तहत हम लोगों को मार्केटिंग का और उसके साथ में हमारा स्टोरी बताने का चांस दिया, इसके लिए हम लोग स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे. अभी जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग पारंपरिक खेती करते हैं, तो इसके पीछे का पर्पज़ क्या है कि पारंपरिक खेती क्यों करते हैं. हमारे पिताजी थे और उनके पिताजी जिन्होंने उनको पारंपरिक खेती का ज्ञान दिया था, और मेरे पिताजी ने हमको पारंपरिक खेती का ज्ञान दिया, जिन्होंने बताया था कि पारंपरिक खेती करनी चाहिए, नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए, और हम लोग जो उगाते हैं वो जिनको देना है तो उनके लिए शुद्ध कैसा जाए, निर्भेड़ कैसा जाए, निर्विष कैसा जाए, तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए. तो हम लोगों ने वही वारसा अपने कंधे पे लेके, ज्योति मैडम और हम और हमारे साथ में पूरा किसान फैमिली जो हमारे साथ में चल रहे, तो इन सबको साथ में लेके हम लोग चल रहे. तो इससे क्या होता है कि जो गांव में जो भी किसान लोगों के लड़के होते हैं, जो कि कोई नौकरी या बिजनेस ढूंढने के लिए किसी शहर में चले जाते हैं, और उनको वहाँ से बहुत सारा नैराश्य वहाँ पे मिलता है, क्योंकि ढंग से जिस टाइप का क्वालिफिकेशन उन लोगों ने किया है उस टाइप का वहाँ पे जॉब नहीं मिलता है, उस टाइप का बिजनेस वो नहीं कर पाते, जो कि मतलब दुनिया की जो रेस है वो रेस में कहीं तो भी उनका कॉन्फिडेंस पीछे ढल जाता है, और वो कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारे किसान लोगों के लड़के जो है, तो या तो वो दो बातें सोचते हैं, या तो गांव में आके वो अपनी खेती बेचे,
या फिर दूसरा सब्जेक्ट चुनते हैं वो सबसे ज़्यादा ख़राब है, वो सुसाइड करने का ज़्यादा सोचते हैं। तो हम लोगों ने 2002 में ये बात हम लोगों ने तय किया कि अभी कोई किसान का लड़का हमारे यहाँ पे सुसाइड नहीं करेगा, या तो फिर कोई किसान भी यहाँ पे सुसाइड नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बड़ा चैलेंज था कि हम लोग उगाते हैं तो इसको बेचे कैसे। तो बेचने के लिए हम लोगों ने सबसे पहला एक बात, हमारे सब अगल बगल के किसान और हमारे पंचक्रोशी के जितने भी लोग थे, सब लोगों ने एक बात पहले तय की कि सबसे पहले हम लोग एक जगह पे आएंगे और ये बात पहले तय करेंगे कि कोई भी केमिकल्स वाली खेती नहीं करेगा, रसायन वाली खेती नहीं करेगा, रेसिड्यू वाली खेती नहीं करेगा। इसकी कसम हम लोग पहले ले लेंगे। अगर हम लोग रसायन वाली खेती नहीं करेंगे तो फिर रसायन खेती से जो सीधा आदमी के शरीर में जाता है वो नहीं जाएगा। तो जब हम लोगों ने ये रेसिड्यू फ्री वाली फार्मिंग करना चालू कर दिया तो दूसरा टास्क हमारे लिए ये तय हो गया, पैदा हो गया कि अभी इसको बेचे कहाँ। तो बेचने के लिए फिर हम लोगों ने मार्केटिंग के लिए कुछ अलग नुस्खे चालू कर दिया। और उसके पहले ये था कि ये मार्केटिंग करने के लिए, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए रोड पे खड़ा होना पड़ा, हम लोगों को अलग अलग शॉप में जाना पड़ा। फिर शॉप में जाने के बाद में बहुत सारे कस्टमर को कन्विंस करनी पड़ती थी कि आप ले लो, आप इसको टेस्ट तो कर लो। एक बार कस्टमर ने टेस्ट कर लिया तो फिर उसके बाद में वो लोग बोलते थे कि हाँ ये सबसे बढ़िया है, अब इसको खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फिर हमको वो फिर से चाहिए, तो फिर से चाहिए तो हम लोग वो अपना छोटा विजिटिंग कार्ड बनाया था उनके पास दे देते थे और वो कार्ड के हिसाब से हम लोगों को कांटेक्ट करते थे और फिर हम लोग उन लोगों को भेजते थे। अभी की आज की तारीख में तो मेरे को गर्व हो गया ये बताने के लिए कि मेरे इसके अंदर के जो लड़के, किसान के लड़के थे, हमारे संपूर्ण शेतकरी गट के जितने भी लड़के, एजुकेटेड लड़के हैं, तो 15 लड़के अभी हमारे साथ में मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं। और जितने हमारी संपूर्ण शेतकरी की महिलाएं हैं तो वो सब महिला अभी घर में वो अपनी काम करती है। हम आखिरी के 5 मिनट में आप लोगों को दिखाएंगे हमारे यहाँ पे प्रोसेस कैसी चलती है, और हम यहाँ का ये माहौल भी दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ पे काम करते हैं। तो फिर दूसरी बात तो ये है ना कि यहाँ की लेडीज जो है जितनी भी वो सब काम करती हैं। और तीसरी बात है कि मर्द लोग, जो पुरुष लोग होते हैं, वो खेती में जाके अपना अपना काम करते हैं वो हिसाब से। जैसे कि गौ माता का गोबर से लेके फिर बैल, फिर गोमूत्र और वो सब चीज़ें, वो सब खेती के काम में आती है, इंसानी जीव के काम में आती है। तो अभी फिर नैसर्गिक फार्मिंग और केमिकल्स वाली फार्मिंग में क्या फ़र्क आएगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि ये संपूर्ण शेतकरी सेंद्रीय शेती गट जो है तो वो काम करता है पूरा नेचुरल पे। और वो इस टाइप का होता है कि 3 चीज़ें ज़रूरी होती है खेती के लिए, और वो उसे खाद बोलते हैं हम लोग, जिसमें आता है नत्र, जिसको आप नाइट्रोजन बोलते हो, दूसरा आता है स्फुरत, जिसको आप पोटेश बोलते हो, फिर उसका आता है पालाश, उसको आप फॉस्फोरस बोलते हो। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। उसके मतलब कम जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स जो बोलते हैं तो वो भी 14 प्रकार के आते हैं, 14 प्रकार के वो आते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होते हैं। ज़रूरी होते हैं ये 3, जिसको हम लोग फिर नाइट्रोजन, नत्र, स्फुरत और पालाश। तो ये नत्र, स्फुरत, पालाश, ये 3 जगह पे हम लोगों के ऊपर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे कि हमारी जो पूरी बॉडी 5 महातत्वों से बनी है, 5 महाभूतों से बनी है। तो वो 5 महाभूतों के अंदर से सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखती है कि हमारा 3 गुण जो होते हैं वो महत्वपूर्ण है, वो उसके ऊपर चलती है। वो सबसे पहले हमारा दोष होता है वात से जो हम लोगों को तकलीफ होती है। फिर आता है कफ से हम लोगों को तकलीफ होती है, उसको भी सुधारना चाहिए। और फिर आता है पित्त। वो पित्त के हिसाब से भी हम लोग अगर ये तीनों के ऊपर ये तीनों काम करते हैं, अगर ये तीनों बराबर से काम करेंगे तो इसको रोका जा सकता है। फिर उसके बाद में हम लोगों को जो आपको देना है, जो कस्टमर को देना है, तो वो इस टाइप से देना ज़रूरी होता है कि अगर कस्टमर खाएगा हेल्दी तो रहेगा हेल्दी, अगर रहेगा हेल्दी तो फिर वो उसका आगे वाली जो पीढ़ी आएगी, उसकी आगे वाली जो नस्ल आएगी तो वो हेल्दी आएगी। नहीं तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन की कमतरता से, नत्र की कमतरता से आपके अगर अकाल में आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। फिर या तो फिर बहुत सारी जगह पे तकलीफ हो रही है आजकल कि नपुंसकत्व ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी का मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई ज़्यादा पतला हो रहा है, कोई खाने से उसकी तबीयत नहीं हो रही है, किसी की तबीयत ज़्यादा हो रही है। और कुछ जगह पे लेडीज़ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि उनको मासिक धर्म में उनको तकलीफ हो रही है। तो वो क्यों हो रही है? सब खाने की वजह से हो रही है। तो मेरी एक विनती, जो शहरवासी यहाँ पे बनते हैं, जो लोग खाने के लिए अनाज कहीं से खरीदते हैं, सस्ते में लेते हैं, महंगे में लेते हैं, तो उनको मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
कि आप जैसे किसी भी जगह पे कोई एक दुकानदार आप फिक्स करते हो, कोई दूध वाला आप फिक्स करते हो, फिर आप कोई चीज़ एक फिक्स करते हो, तो आप एक फार्मर क्यों नहीं फिक्स करते हो? जैसे जहाँ पे हो सके आप एक फार्मर्स फिक्स कर लो, उसको आप बोल सकते हो कि हाँ भाई अभी जामुन का सीजन चालू हो गया, मेरे को जामुन चाहिए, वो दे देगा आपको। फिर कहीं पे अगर पेरू का सीजन, गवा का सीजन चालू होता है, वो आपको गवा दे देगा। फिर आप बोलते हो कि हम लोगों को कहीं पे हुरडा खाना है, मतलब ज्वार का हुरडा जो आता है वो हुरडा खाना है, आपको मिल जाएगा, गेहूँ आ जाएगा और फार्म फ्रेश वेजिटेबल आपको मिलती रहेंगी। तो साल में अगर कोई एक फार्मर्स आप फिक्स करते हो तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा। इसके लिए ये हमारा संपूर्ण शेतकरी सेंद्रीय गट है। तो हम लोगों ने संपूर्ण शेतकरी के नाम से पिछले 5 साल में कम से कम पूना के अंदर 2000 कस्टमर्स हम लोगों ने फिक्स कर दिए है। और उन लोगों ने हम लोगों को 5 साल में कोई एक तो कस्टमर होना चाहिए जिन्होंने हमको छोड़ दिया, वापस नहीं छोड़ा है। मुंबई के अंदर भी हम लोग होम डिलीवरीज कर रहे हैं, फिर अलग अलग जगह पे हम लोग बहुत सारी काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना, तो हम लोगों को बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। लोग यहाँ पे, जैसे ज्योति जी ने बताया कि कम से कम 2000 लोग यहाँ पे आके विजिट करके चले गए। वो यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, फार्मर्स का घर है भाई, किसान का घर है, आप जब चाहो आ सकते हो। हमारे लिए तो कोई ऐसी ये नहीं होता है कि हम शहरवासी थोड़ी, या तो फिर हमारा टाइमिंग कोई होता थोड़ा। आपका घर है, आपके फार्मर का घर है, आपके फैमिली डॉक्टर का घर है, आप आ जाओ, आप रहो इधर, बिंदास रहो, आप खाओ पियो जब तक। और वो भी किसी भी प्रकार का हम लोग उसमें मुआयना आपसे आधा कर नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, जब चाहे आप आ सकते हो इधर। और इसके हिसाब से हम लोग फैमिली, मतलब संपूर्ण शेतकरी जो है, तो इसका हमारा ब्रांड का नाम है फुल फार्मर, कंप्लीटली फार्मर। हमारे ब्रांड का नाम ही है कंप्लीटली फार्मर, फुल फार्मर। और किसान का अगर ये पूरा ब्रांड अगर फुल फार्मर्स का है, तो इसके लिए तो आप भी तो फैमिली हो, हम लोग भी आपको फैमिली के जैसे पकड़ते हैं। हमारे यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, हर एक होता है तो फार्मर्स होता है। इसके लिए तो जैसे जैसे हम लोग इसमें डेवलप करते जाते हैं, तो जैसे ज्योति जी ने बताया कि मॉर्निंग में हम लोग, हमारा सुबह चालू होता है पैट के 4 बजे 3 बजे, उस टाइम पे हम लोगों का जितना ग्रुप्स होता है वो सबके लिए एक मैसेज छोड़ देते हैं कि भाई किसी के पास लेडी फिंगर्स है, किसी के पास गवार है, किसी के पास टोमेटो है, किसी के पास ब्रिंगल है, किसी के पास पालक है, कोरिंडियर है, मेथी है, वो सब चीज़ें वेजिटेबल फार्म में। तो सबको हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई सामने वाली ऑर्डर जितनी आएगी, 10 केजी गवार का ऑर्डर आता है तो हम लोग उसको, जिसके पास गवार है उसको मैसेज भेज देते। फिर वो सामने से बोलता है कि मेरे पास हाँ इतना गवार है, तो उसको लेके आएगा। और जैसे मैडम ने बताया आपको, वो हिसाब से हम लोग, जैसे कि मार्केट में अगर 30 रुपीज़ उसका प्राइस जा रहा है तो हम लोग 32 रुपीज़ देते हैं। तो इससे किसान का भी फ़ायदा होता है, हमारा भी होता है, आपका, और जो कस्टमर को हम लोग देते हैं वो भी सबसे अच्छा मटेरियल देने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत सारी बातें और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कुछ अनदेखी होती है, जिससे दिखावा करके नहीं हो सकता, उसके लिए जीना पड़ेगा हर एक चीज़ में। तो हम लोग किसान की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम लोग फुलफिल ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग दोनों साइड का सोच रहे हैं। हम लोग अगर यहाँ पे उगाते हैं तो उगाना हमारा काम है, लेकिन वहाँ पे लेना, फिर उससे किसी को देना, ये अलग बात है, ये अलग और अलग चीज़ें और अलग टास्क होती है। तो ये जितने भी लोग हमारे साथ में काम करें, तो उसमें हम लोग सबका इसके माध्यम से स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे कि आप लोगों ने पिछले 5 साल से हमको जितना सपोर्ट किया है मार्केटिंग में, और जितना सपोर्ट किया है कि हम लोगों का मटेरियल यहाँ से, हम लोग जब शुरू में काम चालू कर दिए थे तो उस टाइम पे हमको उतना प्योरली मटेरियल हम लोग दे नहीं पाते थे, क्योंकि आप लोगों का चॉइस नहीं मालूम था कि किस टाइप से देना चाहिए। अभी और उस टाइम पे भी बहुत सारे बड़े दिल वाले लोग थे कि वो सोचते थे कि अरे हाँ ये 150 किलोमीटर से लेके आए, 200 किलोमीटर से लेके आए, तो इनके लिए जो है ना, तो आप उधर से हमारा मटेरियल आप लोगों ने लिया है, इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया हम लोग अदा करना चाहेंगे। और अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ये रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके, मैंने तो मेरा जितना भी गांव है, गुंडेगांव जो अहमदनगर से 36 किलोमीटर पे पड़ेगा साउथ साइड में, तो मैंने कम से कम 70 से लेके 80% तक मेरा पूरा गांव ऑर्गेनिक बनाया है। और मैं इसके माध्यम से जितने भी कोऑर्डिनेट करने वाले लोग हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, और जितना ये लोग ये प्रोग्राम देखेंगे, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नेचुरल फार्मिंग पे ध्यान दे दो, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग हम लोग पैसा बनाएंगे अपने लिए, फिर आगे वाली नस्ल के लिए कुछ तो आप छोड़ो।
अगर कुछ नहीं छोड़ सकते हो, वो अगर हेल्दी उनको बना के आप छोड़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि कोई अगर सामने वाली आपकी नस्ल में आगे जाके अगर कोई हेल्दी नहीं रहेगा तो फिर ये पैसा बनाने से क्या होने वाला है। तो इसके लिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप खाओ हेल्दी, रहो हेल्दी और जियो हेल्दी। क्योंकि ये कोविड-19 ने ये दुनिया को दिखा दिया कि इंसान कितना भी प्रगत हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही होगा। अभी भी जो मतलब हमारे पंतप्रधान जी है, उन्होंने बोल दिया है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, जिसकी प्रतिकार क्षमता अच्छी रहेगी, वो जिएगा ज़्यादा। और योग के ऊपर जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है तो उनको सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हम लोग तो किसान हैं, योग करने का हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, फिर भी हम लोग योग करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे तो उनके लिए भी हमारा ये सजेशन रहेगा कि आप करो, आप हेल्दी रहो, फिट रहो। हम लोग तो खेती में सवेरे बैठ के 4 बजे चले जाते हैं, रात के 8 बजे तक तो हमारा योग ही योग बनता है। तो वो हिसाब से हम लोग जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने रखने के लिए जो कृषि जागरण ने हमको व्यासपीठ दिया, उसके लिए हम धन्यवाद। अभी मैडम जी आपके साथ संवाद करेंगे। As said by Santosh ji, as there we all know experience about lockdown at home, whole world is stopped, but at agri related work are not stopped here. So the bright future in agri industry and in food industry, if anyone interested in marketing of Sampurna Shetkari Sendriya Sheti Gat, please contact us. If you want any information about field work, so you will contact to Mr. Santosh Bhapkar. His mobile number is 9404 388008. Contact you will अपना तो ना background of. So I will show you some areas, some places from my home and my region. Please see. Front camera. कॅमेरा वगैरे माझ्या जवळ आहे, तुम्ही बोलते इकडं कधी नाही. This is a desi indigenous variety of cow. In our Sampurna Shetkari Sendriya Gat, there is a one rule: as the farmer is in group, there is a 2 cows like this. We have these are some. Please see, he is only 3 months here, old. So these are indigenous variety. I will show you some my farm area. Here it's all of my farm. Here is some mango trees which are also desi. I will show you about Dashaparniyar which are collected in here. The drums are there. In this drum there is a Jivamrut. In this content is cow dung and urine. These are the second drum. It's as explained by Santosh ji. These are the Dashaparniyar, means 10 types of trees leaves and cow urine are there. These are used for the very in the material when crop is in the bright condition. I will show you. I have a tulsi garden which is a desi and indigenous variety. It is very medicinal and used for the very medicinal Ayurveda. जैसे कि ये
आपको मालूम होगा कि ये कृष्ण कमल है, जो कि हमारे पूरा जो हाउस है उस हाउस के लिए वो पूरा जो गार्डनिंग का काम करता है, इससे ये काम कर दिया और बताया कि ये पूरा तुलसी गार्डन जो है, तो तुलसी गार्डन में हम लोग जो हमारे घर के सामने बिल्कुल हम लोगों ने एक गार्डन कर दिया, क्योंकि हम लोग भले किसान हैं लेकिन किसान के साथ साथ हम लोगों को ये मालूम है कि आयुर्वेद में तुलसी की क्या महती है, और हम लोग जो तुलसी का इतना सब गार्डन, ये बड़ा प्लॉट हम लोगों ने इधर करके रखा है, तो इसके लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हमारा हाउस है पूरा जाता है It's my simple and traditional type of home. Workshop मध्ये नाही ते का? इकडे दाखव ना. Please visit for this natural climate. ये पूरा अगल बगल में आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा जो बगल का परिसर है, ये पूरा की पूरा मतलब जो जंगल है और ये सब बाकी के ये सब शेततळ्याहून जाऊन तिकडून शूटिंग दाखव पॅकिंग बिकिंग दाखव संतोष पॅकिंग बस हॉटस्पॉट रेंज नाही पकड. These are the drum system for the storage of migraines and dal material. These are the arhar dal, which is unpolished one. These are the flax seeds. As the farmers material collected here, it will be sorted, cleaned manually, and then stored here. It's a घुंगरू शेंगदाणा. It's a very popular variety from Sampurna Shetkari Sendriya Ghat. It is very popular. It's known as a घुंगरू शेंगदाणा. All the dals, one says it's all seed, named as flax seeds. I will show you moth beans. Please see the grain size of the moth beans. It's a pure desi and natural variety of moth beans. These are the packing area. Here packing is done. Weight of the material as according to pre-order. It may be 250 gram, 500 or 1 kg. There is packing. We will give wheat flour also, wheat and bajra flour. In a lockdown, there is a very necessity of this material for home delivery. customer. Home delivery. These are the packing for the flours in a home delivery. और इस टाइप का हम लोग जो कैरेट में है पैकिंग करके यहाँ पे रख देते हैं, और फिर ये कैरेट जो है ये पूरा लोड होके जैसे जाएगा पूना जाएगा, मुंबई जाएगा, फिर लंबे शहर में चला जाता है जो कस्टमर के लिए होता है. Here manual cleaning is there. These are manually cleaned by material. दिस इज प्योर वेट लोकवन, जैसे बोलते हैं हम लोग कल्याण सोना बोलते हैं. तो ये गेहूँ यहाँ पे हम लोगों ने क्लीन करके रखा है, और ये ज्वार है जिसको हम लोग दगड़ी बोलते हैं, यहाँ पे बना के क्लीन करके यहाँ पे रखा है हम लोगों ने. It's a variety of black beans. Any seeds is affected by insecticide. There is only one option for it. It is dried in sunlight. There is no effect of chemicals on it. As we are in, please see our nature. It's a hilly area. There is a arrangement of drums where the collection of cow dung and urine will be there.
in a three sides hilly area. It's a very tribal zone. In this forest there is a very medicinal and rare plants. We will aware people and customers about seasonal fruits and seasonable vegetables. Seasonable vegetables and seasonable fruits. थैंक यू। हम लोग कृषि जागरण जिन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, फार्मर्स द ब्रांड, इसके तहत हम लोगों को यहाँ पे जो चांस दे दिया बात करने के लिए, फेसबुक लाइव आने के लिए, उसके लिए कृषि जागरण का, इनके सब एडिटर्स और सबको हम लोग तहे दिल से थैंक्स बोलते हैं। और जितने भी फेसबुक लाइव देखने वाले हैं और इसके बाद में इसका जो प्रचार होगा, वो सबको हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरे जैसे और हमारे जैसे कितने किसान इस हिंदुस्तान में काम करते हैं, लेकिन सबको ये नसीब नहीं होता है कि वो मार्केटिंग करे, वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद में उनका ब्रांड बन जाए। लेकिन आप सबको मैं तहे दिल से विनती करना चाहूँगा कि अगर कोई भी किसान जहाँ पे काम करते हैं तो बहुत सारी मेहनत से काम करते हैं। जो भी फल आप खाते हो, जो भी अनाज आप खाते हो, तो वो अनाज वो पकाने के लिए, आप तक लेके आने के लिए बहुत सारी मेहनत इसके पीछे होती है, जिसका फैमिली, वो किसान की फैमिली पूरी इसमें लगी रहती है, जिसके बाल बच्चे होते हैं, उसके माता पिता होते हैं और उनके सब भाई बहन, उसके सब लोग इसमें काम करते हैं, सब जुड़ते हैं। तो इसके लिए आप कृपा करके किसी भी अनाज का, किसी भी धान्य का आप दुरुपयोग मत कीजिएगा। आप इसको जितना चाहे, जितना ज़रूरी है उतना ही आप थाली में लीजिएगा, उससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा, क्योंकि वो आप भले आप पैसे दे के खरीदते हो, लेकिन ये पैसे के पीछे, पैसे में उसकी कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग रात में काम करते हैं, दिन में काम करते हैं और ये सब उसके बाद में आप तक लेके आते हैं। हमारा संपूर्ण शेतकरी सेंद्रीय शेती गट और काम करेगा और काम करता रहेगा। इसके लिए हमको ज़रूरत है सिर्फ आपके कोऑपरेशन की, आपके सहकार्य की और आपके आशीर्वाद की। और हम लोग आखिरी में इसके लिए आपको स्पेशल एडिटर्स लक्ष्मी दीदी का हम लोग दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने महाराष्ट्र के इतने छोटे से गांव में हम लोगों ने आपने हमको खोजा, हमारा सक्सेस स्टोरी आपने रिलीज़ कर दिया और फेसबुक लाइव आने के लिए इतने सारे देशों में, इतने सारे राज्यों में हम लोगों को पहुंचाया। इसके लिए हम लोग आपसे और दिल से थैंक्स बोलना चाहेंगे। इसके ज़्यादा हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। थैंक यू।